we're doing a worksheet on forces on inclined planes today. Okay, we've talked about these forces before. Let's quickly recap them and then start the past papers question. Okay, so here is an inclined plane, inclined at an angle theta degrees. Here's a mass, an object with mass m placed on the inclined plane. And we know from the previous lecture that this component is going to be mg cos theta. And this component of the weight is going to be mg sine theta. Then there's a normal contact force in this direction, R. And then let's say there's a force in this direction. It could be a horizontal force. Let's call it F. So horizontal to the inclined plane. Then it looks like this. And if it's told that the plane is rough and the object is going upwards, then there will always also be a friction in the opposite direction, which is mu r. So the forward force in this case is F. The backward forces in this case are mg sine theta and mu r. And r is just equals to mg cos theta. This is if the object is moving up the inclined plane. Then the friction should be pointing downwards. If the object is moving downwards, that would mean that the friction is in this direction, even if the force is upwards, but the weight is a lot, which is making the object move downwards. So now the friction is going to be in the opposite direction. Also, there might be a case where the force is also inclined at another angle. Let's say this is 20 degrees. The force is inclined at 20 degrees. Then you're going to break the force into its components, resolve the force into its two components. This one is going to be F cos 20. And this upward component is going to be F sine 20. So now, if the object is moving upwards, then there's going to be a friction downwards, which is going to be mu r. So the forward force would be F cos theta, F cos 20. The backward force is going to be mu r and mg sine theta. And r plus F sine 20. The sum of these two would be equals to this mg cos theta. So this was the basic theory of forces on inclined planes that we had already discussed before. This was a quick recap. Now let's apply this on in the past papers question. Okay. Question 1 of the worksheet, forces on inclined planes. I will send you the worksheet right after the class. I forgot to send it to you guys. Okay. A basket of mass 5 kg slides down the slope inclined at 12 degrees.
So 12 degrees slope, basket of mass 5 kgs, slides down the slope. So double arrows in this direction. Coefficient of friction between the basket and the slope is 0.2. So that means mu is 0.2. That means friction is going to be mu r, which is going to be 0.2 r. Which direction should I point the friction? Down the slope, up the slope? जी बताएं. किस डायरेक्शन में होनी चाहिए फ्रिक्शन? आयशा आजर डाउट. मैम डाउन स्लोप. मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी? मैम वैसे मूवमेंट हो रही है डाउनवर्ड्स. क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 5 kg के मास स्लाइड्स डाउन द स्लोप. तो फ्रिक्शन अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड नहीं होगी. So friction would be in this direction, mu r. Okay. Find the frictional force acting on the basket. So for part 1, friction's formula is mu times r. Mu is 0.2. What's r? r कैसे आएगा? किसी को पता है r कैसे आएगा? मिस वेट के इक्वल होगा. क्या वेट क्या है? मैम 15. 15. वो तो तब होता अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस होती. तो तब r यूं होता है और mg यूं होता है. So it's not a horizontal surface, तो it's a... फिर वेट का जो कंपोनेंट होगा उसके इक्वल होगा. क्या होगा वेट का कंपोनेंट? इस डायरेक्शन में जो मिस डाउन... 50 cos 120 if 50 cos 12. Yes, 50 cos 12. The component of weight in this direction is mg cos 12. And the component of weight in this direction is mg sin 12. And r is in this direction. So r is equals to 50 cos 12. Give me the value of friction. नाइन 9.78. Okay, 9.78. Yeah, okay. Okay. Determine whether the speed of the basket is increasing or decreasing. तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगी बास्केट, क्या स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? ये हमें पता चलेगा इससे कि क्या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या डिसेलरेट कर रहा है. तो मैं कैसे फाइंड करूं एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन? मिस फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल होंगे. हाँ एग्जैक्टली. सो फॉर पार्ट 2 आप चेक करोगे एक्सेलरेशन हो रही है, पॉजिटिव ए आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है. तो आपने करना है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स एम ए. फॉरवर्ड फोर्स क्या हो?
Miss 50 sin 12. हाँ जी, जो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, 50 sin 12। और बैकवर्ड क्या होगी? Miss जो रेजिस्टेंस आई थी। हाँ, म्यू आर, जो फ्रिक्शन थी वो ये आई थी 9.78। सो 9.78 इक्वल्स टू मास 5 है और ए है। अब बताएं पॉजिटिव ए आ रहा है नेगेटिव ए आ रहा है? क्या आ रही है ए की वैल्यू? 50 cos 12 minus 9.78 divided by 5। मिस -7.32 आ रही है। माइन नेगेटिव आ रही है, मैं चेक करती हूँ। 50 मैम 7.825। sin 12, okay, 9.78 divided by 5। मेरे पास तो 0.123 आ रही है। 50 sin 12। Yes, ma'am. 0, 1, आप 2, लोगों 3. के कैलकुलेटर रेडियंस में तो नहीं है? 0.123। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, acceleration is greater than 0, so speed is increasing। अगर ये नेगेटिव आ जाती इसका मतलब होता कि डिसेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो फिर हम कहते हैं स्पीड इज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन 2 करते हैं। The top of an inclined plane is at a height of 0.7 meters above the ground. Okay, so here's an inclined plane and the top is 0.7 meters above the ground. So this would be, if you form a triangle like this becomes 0.7 meters. A block of mass 0.2 kg is released from rest at the top. So this is the top. It's released from rest, that means U is 0. And slides a distance of 2.5 meters to the bottom. Okay, so then it slides down and this distance is 2.5 meters. Okay, so this is 2.5 meters. Find the kinetic energy of the block when it reaches the bottom of the plane in each of the following cases. Okay, so we have not studied the topic of kinetic energy yet. It comes later, but I hope you remember from O levels that kinetic energy equals half mv square. Okay, so we're just using the formula. We're going to cover this topic in detail in one of the later chapters that we do.
Okay, so we know what is half, we know what is m is 0.2, but we need the v at the bottom. We need this v. So what's going to be the speed when the object reaches the bottom? If we have that, we use that to find the kinetic energy. तो अब कोई बता सकता है कि v कहाँ से फाइंड करें, कैसे फाइंड करें? अगर a पता चल जाएगा तो क्या v पता चल जाएगा? Yes, ma'am. देखो u पता है ना, u 0 है, s पता है 2.5 है, v पता करना है, बट एक चीज मिसिंग है, या t पता होना चाहिए टाइम, या a पता होना चाहिए। a हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह? Ma'am, S is equals to UT plus. Hmm. देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ना तीन चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ खाली दो चीजें पता है, u और s। अगर a आ सकता है किसी तरह तो फिर आप a फाइंड करके फिर v निकाल सकते हो और फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि a कैसे लाए। एक और भी फॉर्मूला से a आता है अदर देन इक्वेशंस ऑफ मोशन, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? हर क्वेश्चन में तकरीबन वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स ma। अच्छा जी, क्या होगी फॉरवर्ड फोर्स, क्या होगी बैकवर्ड फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे? कोई फोर्स है जो स्लाइड के नीचे पॉइंट कर रही है डाउनवर्ड? Ma'am, 0.20 10 to Newton. तो ये समझ नहीं आई क्या Hmm. है? Ma'am, 2 Newton weight होगा. ये 2 न्यूटन इधर पॉइंट कर रहा है, ये कह रहे हो इस डायरेक्शन में? नहीं नहीं, नीचे नीचे इधर. बेटा वो तब हाँ. करता है जब ये फ्लैट सरफेस हो, तब 2 न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट करता है, इंक्लाइंड पे ये नहीं होता। इंक्लाइंड पे क्या होता है? मैम, उसके कंपोनेंट हाँ, ये वाला कंपोनेंट क्या होता है? cos हाँ, 2 एम cos जी कॉस थीटा। और ये क्या होता है? mg sin theta. हाँ, थीटा। अच्छा, अब थीटा कैसे आएगा इस क्वेश्चन में? तो थीटा भी नहीं, वो कैसा है? Hmm. मैम, ये राइट एंगल है. हाँ, राइट एंगल। फिर राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या एंगल है? ये थीटा चाहिए। मैम, इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के ठीक है, एंगल बिल्कुल। निकालेंगे. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? बेटा बाकी भी पार्टिसिपेट कर मैम, ले। जी। साइन 100 लग रहा है? हाँ, 100 लग रहा है। करना साइन थीटा इक्वल्स 0.7/2.5 क्या आता है? साइन इट वाज 0.7 मैम ओवर 16.26. Okay, so 16.26. So this angle is 16.26. Okay. तो अब फॉरवर्ड फोर्स क्या है?
2 sin 16.26. हाँ जी, mg sin थीटा फॉरवर्ड फोर्स है, सही है। mg sin थीटा माइनस बैकवर्ड फोर्स क्या है इस क्वेश्चन में? 2 cos 16.12. वो तो नीचे जा रही है फोर्स। 16 बैकवर्ड का मतलब है इधर, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू mg sin थीटा। वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन हो गई। क्या गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन द क्वेश्चन? No, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन नहीं है। no. अगर होती तो बताया जाता। ठीक है। सेकेंडली देखो, इधर का पार्ट वन में कहा है प्लेन इज स्मूथ। स्मूथ प्लेन का मतलब होता है म्यू जीरो, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। तो फर्स्ट केस में फ्रिक्शन जीरो इन पार्ट वन। So forward force minus backward force equals mass 0.2 acceleration A. ये m है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 0.2 इंटू 10 इंटू साइन 16.26 is equals to 0.2 इंटू A फाइंड करके बताओ। Mm, 2.799. अच्छा, 2.79। ओके, ए आ गया। अब हम वी फाइंड कर लेंगे। तो अब दोबारा से यू जीरो है, एस 2.5 है, वी क्वेश्चन मार्क है, और ए 2.79। एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेस तक वैसे वैल्यू लिखनी चाहिए टू अवॉइड प्री मेच्योर राउंडिंग। तो फिर क्या होगा इधर? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? आयशा, आपने कर लिया ये क्वेश्चन क्या, या साथ साथ करें? साथ साथ हम्म, ओके, फिर बताएं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी इधर, जिससे Yeah, वी we निकले। say हम्म, we could see is equals to a. ठीक है। v इक्वल स्क्वायर रूट 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2.79 टाइम्स 2.5। 3.74 on. ठीक है, 3.74। अच्छा जी, अब काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो वो क्या है? एट द बॉटम, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, सो हाफ m है 0.2, v है 3.74 स्क्वायर। क्या आता आंसर? 1.3997. ठीक है, 1.4 न्यूटन राउंड ऑफ हो जाएगा। अच्छा जी, पार्ट टू देखते हैं। अब फिर से फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम when the coefficient of friction between the plane and the block is 0.15, 0.15। अब म्यू आ गया, दैट मीन्स अब फ्रिक्शन आ गया।
फर्स्ट पार्ट में तो कहा था स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होती। अब का है कि म्यू 0.15 है, तो कैसे चेंज होगी इक्वेशन? न्यूटन लॉ कैसे चेंज होगा? व्हाट डज इट मीन के म्यू 0.15 है? मैम के सरफेस ओनली। सरफेस क्या? म्यू, अगर क्वेश्चन में म्यू गिवन है तो उससे क्या पता चल रहा है कि क्या, और क्या है क्वेश्चन में? मिस फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी? मिस मोशन के ऑपोजिट तो बैकवर्ड्स। हाँ, तो पहले मैंने जहाँ 0 पॉइंट किया था, अब वहां करना है म्यू आर। आर किस डायरेक्शन में? मिस ऊपर की तरफ ऑपोजिट। हाँ, एम जी कॉस थीटा के ऑपोजिट इसके। ओके, सो अब हमारी क्या होगी? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम है। टू मिस साइन पहले 16 ओके, आगे। मिस माइनस माइनस 0.15 into mg cos theta ठीक है, इक्वल्स एम ए। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए। is equal 0.2 into a। ओके, एम, ठीक है, मैं चेक करती हूँ। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर इक्वल्स एम ए। तो एम हो गया 1.2, जी हो गया 10, साइन थीटा हो गया साइन 16.26, माइनस म्यू हो गया, क्या आया था, 0.15। और आर की जगह क्या लिखूं मैं अजर? आर इक्वल है मैम वेट के ऑपोजिट तो हाँ, तो एन जी कॉस हाँ, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, आर इज इक्वल टू एम टू जी इंटू कॉस इंटू 2 इंटू, हाँ, या 0.2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। और 1.96 ठीक है, एक सेकेंड, थीटा की जगह आपने वही 16.26 लिखना है। तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स एम है 0.2 और ए हमने फाइंड करना है। अब करके बताओ, ए फाइंड सिंप्लीफाई करके। क्या आती है एक्सेलरेशन?
अच्छा, ये गलती मुझे नजर आई है। m 0.2 था, यहाँ मैंने 1.2 लिखा हुआ है, इसको प्लीज फिक्स कर ले। दिस इज 0.2। जी, क्या आती है एक्सेलरेशन? लेफ्ट हैंड साइड को पूरा कैलकुलेटर में एंटर करो, उसको डिवाइड बाय 0.2 कर दो। 1.35। नहीं, थोड़ी सी राउंडिंग का इशू आ रहा है आपका। 0.2 इंटू 10 इंटू साइन टू 16.26 माइनस 0.15 इंटू 0.2 इंटू 10 इंटू कॉस 16.26। तो नहीं, मैंने कुछ गलत किया। दोबारा करना सब प्लीज। डिवाइडेड बाय 0.2, अच्छा आ जाता है 1.3599, ये आ रहा है। यस मैम, यही मिला। ठीक है, ठीक है, सही बोला। तो वो बन गया 1.36। अच्छा, वैसे हमने एक्सेलरेशन तो नहीं फाइंड करनी है, तो हम इसको नहीं राउंड ऑफ करेंगे, हम इसको उसी तरह यूज करेंगे। हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो के ई एट द बॉटम विल बी हाफ एम। अच्छा, अभी तो पहले वी फाइंड करना है। वी स्क्वायर, वी नहीं पता, तो उसके लिए अब हमें फॉरवर्ड 0 पता है और 2.5 पता है डिस्टेंस, और वी फाइंड करना है और ए भी पता है। सो अगेन सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। यू 0 है, एस 2.5 है, वी फाइंड करना है, और ए अब है 1.3599। So same v square equals u square plus 2as। तो बताएं v क्या आता है? 0 square plus 2 times a, जो भी पिछला आंसर आया, इंटू s which is 2.5। बताओ आंसर्स। या स्क्वायर रूट, फिर देर क्यों लग रही है? 0 square plus 2 times टू आंसर। पॉइंट सिक्स जीरो ठीक है, 2.614 आ रहा है। आपकी राउंडिंग का कोई इशू चल रहा है। SS 2.5। आप आई थिंक हर स्टेप पे शायद कुछ राउंड कर रहे हो, तो अभी इसको राउंड ऑफ नहीं करना है। ये आया है 2.614 मेरे पास लिखा हुआ है। अब इसको हाफ एम वी स्क्वायर में पुट कर देना। क्या आता है आंसर? 0.683। हम्म। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकाली है, वो जूल्स में होती है, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर।
ओके मैकेनिक्स में आई वांटेड टू डू अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, लेकिन आज 2 ही हुए हैं क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू गो स्लो कि आप लोग साथ साथ पिक करो। लेकिन कल से ना सबने मुझे आंसर देना है, कोई एक बच्चे ने नहीं देना। सो दाऊद एंड आयशा, आई एक्सपेक्ट यू टू बी मोर इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड इन द क्लास मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, अब हम पेपर करने लगे हैं। आई एम गोइंग टू सेंड यू गाइस अ न्यू लिंक।